we will talk about time to reinvent yourself. ठीक है, That means स्पेसिफिकली मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप ये गाड़ी लेके यूनिट पहुंच सकते हैं। लगा कि यार पहली पोस्टिंग में पहला दिन जा रहा हूँ, ये नक्सल की बात कर रहे हैं और हथियार मेरे को पकड़ा दिया है। बट एनीवे, आप जिस जगह पे खड़े हो, इट्स आउट ऑफ बाउंड रेड लाइट एरिया। द सेकंड गाय जिसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, मैं बोला कि मेरा बंदा वहां से आ रहा है, एंड दैट गाय वाज he had vanished. I was just getting shattered कि मतलब क्या हो the गया। first day, the first. पहला दिन मैं अभी पहुंचा भी नहीं यूनिट, एंड समथिंग दिस काइंड हैज हैपेंड। Exactly. तो मैंने बोला मेरे पास तो आईडी कार्ड है नहीं। Hmm. तो बोला कि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप एंटर नहीं कर पाए। तो मेरे को मेरा सामान लेके सीधा वहीं पर उन्होंने लैंड करवाया। उस jail. आप अपने सामान की देखरेख नहीं कर पाते हो, देश की क्या देख रेख करो। लिख के कि यू आर नॉट फिट टू बिकम एन ऑफिसर, कि जैसे वो सडनली उठ के मेरे को अवॉइड करके निकल जाना चाहते हैं। में यू गेट अ बुके वेलकम एंड you are so cordially welcome and you go and land up in a jail. मैं सुन रही हूँ तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि शिट फिर क्या हुआ, फिर कौन आया। तो लाइक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, my name is Anisha and I welcome you all. In today's series, we will talk about time to reinvent yourself. That means try. We usually try in life and sometimes we succeed, other times we fail. And these sessions will be considered in series, and in today's series, we will talk about the mental or the lifestyle of Captain Chinmay Nayak. So I welcome you, Captain Chinmay Nayak, on our show. Thank you so much, Anisha. Thank you and your platform for inviting me once again. And I'm really excited to take this discussion ahead this evening. Thank you, sir. So, sir, according to you, what do you consider as time to reinvent yourself? Okay. So, time to reinvent yourself, what I mean here is that we all use smartphones, we all use different electronic gadgets, and we all are very eager that when is the next version of this electronic gadget is coming, right? And so, but we never in fact introspect us. We do not in fact try to find out that when is the next radical version coming of our own self. Right. Because why we use different gadgets, and why we wait for different softwares for more easier way of working, and more in fact different kind of results that we can achieve from them. Perfect. Similarly, it works for the people also, but we never look into that direction that कि मेरा नेक्स्ट वर्जन, रेडिकल वर्जन कब आने वाला है, या कब मैंने अपने आप को एक डिफरेंट वर्जन में मैंने इनफैक्ट चेंज किया था. So that is a very important question, because most of the times we try to achieve different results, but we keep on in fact doing the similar kind of efforts, and but expecting different results, which is unlikely. So time to reinvent yourself में I think सबसे पहले एक expectations होने चाहिए कि मुझे करना क्या है, what I need to become and what I am desiring to achieve actually. So once we have those expectations in place, then I think we know that what kind of version of ourselves we require to achieve that goal. Right. Well said, sir. Well said. So, sir, according to you, how do you consider that in your defense line, there's some time where you think that your theory learning and your practical learning is somewhat different, and through that you can achieve reinventing in yourself? Absolutely. Very, very, in fact, aptly said, Anisha. Theoretical learning और practical learning में बहुत फर्क होता है. आपने एक अच्छा टॉपिक आज याद दिलाया. आपको एक I'll take you through one event in my life. जब मैं we had close to 1 year training in the officers training academy. कुछ practical learnings भी है and कुछ theoretical learnings भी थी वहां पर. But वो एक साल की पूरी learning I could see when initially I tried to join my unit in one of the field areas. I'll tell you a story about it. It's a real story. वो एक साल की जो मेरी ट्रेनिंग एकेडमी की जर्नी थी, जो भी मैंने सीखा,
वो उस 7 दिन में उससे कहीं ज्यादा मैंने सीखा, कई चीजों को मैंने अपनी लाइफ में उसमें वहां पर वैलिडेट कर पाया। तो थियोरिटिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग में डेफिनेटली एक देयर इज अ डिफरेंस, एंड बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आई वुड से। अगर Exactly. थियोरिटिकली आपको पता नहीं है, यू डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। Right. तो थियोरिटिकल नॉलेज को खाली लेके अपने पास रखना, अनलेस यू नो वेयर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, दैट इज ऑल्सो इन फैक्ट इट डजंट मेक एनी सेंस। बट अगर आपको थियोरिटिकल नॉलेज होना जरूरी है, वो होने के बाद जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल फील्ड में, यू नीड टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज कि आप इसको एग्जीक्यूट कहाँ करोगे, सो दैट यू नो दैट वेदर दिस वर्क्स फॉर यू और इट डजंट वर्क फॉर यू। इफ इट डजंट वर्क फॉर यू, यू नीड टू लुक इनटू द डिफरेंट, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में फिर अपने जब हम काम करते हैं उसमें हम सीखने को हमें मिलता है। तो आज स्टोरी सुनने के मूड में हो क्या आप? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके ये ही तो एक्चुअली द ट्रेजर यू हैव, सो यू शुड शेयर। ओके राइट। सो मैं एक आज काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है मेरी जर्नी का, व्हाइल आई पास्ड आउट फ्रॉम द एकेडमी। एकेडमी से पास आउट होने के बाद यू गो फॉर अ 21 डेज लीव। 21 दिन जाके मतलब यू गेट कमीशन, एक बहुत ही एक एक्साइटमेंट रहता है, नाउ आई हैव बिकम एन ऑफिसर, और फील होता है कि यार सोशली कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, एंड यू फील प्राउड अबाउट इट ऑल्सो। तो 21 दिन की छुट्टी बहुत ही फटाफट गुजर जाती है, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप गए हो, आप रिलेटिव्स को विजिट करते हो, दाएं बाएं अपने इनफैक्ट काम में फ्रेंड्स सभी को विजिट करते हो, और ऑल आर हैप्पी अबाउट यू, ऑल आर विशिंग यू ऑल द लक कि आगे की करियर आपकी कैसे रहेगी। एंड तो ऐसे करते करते इनफैक्ट विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई योर 21 डेज ऑफ लीव इज ओवर। तो पहली पोस्टिंग मेरी अनीशा एक नॉर्थ ईस्ट में एक फील्ड एरिया में थी। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं जहां पर जाके रेलवे से कनेक्टेड थी। आई वॉज स्टेइंग इन उड़ीसा दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां से मुझे ट्रेन लेके एक न्यू जलपाईगुड़ी करके स्टेशन है, विच इज इन सिलीगुड़ी, क्लोज टू सिलीगुड़ी, एंड वहां तक जाना था। वहां से फिर बाई रोड मुझे अपनी यूनिट में जाना था। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक मार्च का महीना था, वहां पर थोड़ी ठंड और इस तरीके का जो क्लाइमेट होता है ना, एक हिली एरिया में, सो इट वाज अ हिली एरिया की क्लाइमेट्स थी। सो उस तरीके का क्लाइमेट उस वक्त हुआ करता था। तो मेरी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग मतलब अराउंड 4:30 इट रीच थी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। तो वहां जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे स्लो हो रही थी रुकने के लिए, आई कुड सी देयर आर कपल ऑफ आर्मी पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो खिड़की से मैं देख रहा हूँ, सेकंड एसी का टिकट था मेरा, मैं खिड़की से बाहर झांक रहा हूँ कि नया जगह है, कैसे उतरूंगा, कहाँ जाऊंगा, वो सब एक एंजाइटी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी, क्योंकि पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे मतलब अपने जॉब के लिए। इससे पहले तो मैं ट्रेनिंग एकेडमी में था, वहाँ के जो रिक्वायरमेंट्स, वहाँ की जो डेली रूटीन एक डिफरेंट होती थी। अभी आप जो चीजें सीखे हो उसको आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट, एक कुछ अंदर का छोटा सा फियर, एंजाइटी, वो सब कुछ मेरे अंदर था। बहुत सारे सवाल थे, क्वेश्चंस थे। तो मैं देख रहा हूँ 4-5 लोग वहां पर यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं। एक के हाथ में एक ट्रे है, एक व्हाइट कलर में, एक मुझे लगा कि एक वेटर है, मे बी कुछ जूस का और पानी का ग्लास उसके ये में कवर करके रखा है। एक इंडिविजुअल के हाथ में एक बुके था छोटा सा, राइट। और मुझे दूर से दिखा उनके साथ और 2 लोग थे, और एक कैप्टन रैंक का एक ऑफिसर वहां पर खड़ा था। दूर से मैं जो रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी स्लो हो गई थी। तो एनीवे गाड़ी जाके रुकी वहां पर, और मैंने बाहर आया, अपना सामान देख रहा था कि कोई शायद, क्योंकि जनरली क्या होता है जब ऑफिसर्स पहली बार यूनिट में जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए एक छोटी टीम आती है, जस्ट टू इनफैक्ट मेक देम फील गुड, एंड उसके बाद एक रिसेप्शन का एक इनफैक्ट एक फॉर्मल रिसेप्शन होता है, क्योंकि पहली बार कोई यूनिट जा रहा है, उस यूनिट का पार्ट बनने जा रहा है।
तो मैं ऐसे झांक रहा था, तो उनमें से 2 बंदे गाड़ी की तरफ, ट्रेन की तरफ चल के आने लगे। तो उन्होंने पूछा कि चिन्मय साहब? तो मैंने बोला हाँ साहब। तो वो बोले कि मैं साहब आपकी यूनिट से आया हूँ और आपको रिसीव करने के लिए। तो 2 लोग, मैंने बोला हाँ ठीक है साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आई थिंक आप आए रिसीव करने के लिए। तो कैसे मुझे करना है? ना साहब आप उतरिए। अपने साथ में 1-2 जवान और थे जो अंदर से जाके मेरा सामान, मेरा बैग और पिक करके बाहर ले आए। तो जब मैं नीचे उतरा, मैं उन लोगों के पास गया जो 4-5 लोग खड़े थे। मैंने देखा एक कैप्टन साहब भी हैं उसमें, राइट? और एक जेसीओ थे जो नायब सूबेदार रैंक के, एक हवलदार थे और एक मेस के एक वेटर थे जो व्हाइट ड्रेस में थे, राइट? तो हमारे जनरली ऑफिसर्स मेस में आपको वो मिलेंगे जो। तो मैं जब गया, मैंने विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैंने देखा वो, उनका नाम कैप्टन राहुल था। जो मेरी यूनिट से मेरे सीनियर थे, वो आए थे मुझे रिसीव करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, एक फील गुड फैक्टर आता है ना कि कुछ लोग तो रिसीव करने के लिए आए हैं। तो एक जेसीओ साहब थे, उनके हाथ में बुके था, उन्होंने वेलकम करके मेरे हाथ में दिया, मैंने भी उसको पकड़ लिया और मैंने सैल्यूट किया। एज मैं जूनियर था, और तो कैप्टन राहुल साहब को मैंने सैल्यूट किया। तो ही शूक हैंड्स और बोले कि लेफ्टिनेंट चिन्मय, वेलकम टू दी यूनिट। तो बहुत खुशी हो रही थी अंदर से, राइट? उसके बाद मैं देखा कि वो जो व्हाइट ड्रेस में जो वेटर थे, उन्होंने, उनके पास एक ट्रे में जूस का ग्लास था और एक पानी का ग्लास था, इनफैक्ट क्रिस्टल ग्लास। वो मतलब मेरे को दिए कि मैं पीऊं वहां पर। तो मैंने इनफैक्ट पानी का ग्लास भी पी लिया और जूस का ग्लास भी मैंने पी लिया वहां पर, राइट? सो वहां पर क्या होता है, हर एक स्टेशन में जहां पर डिफेंस की मूवमेंट्स होती है, अनीशा कैन यू हियर मी? तो हर एक स्टेशन में जहां पर आर्मी की यूनिट्स होती है या मूवमेंट्स होते हैं, वहां पर एक मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है, एमसीओ बोलते हैं उसको जनरली। एमसीओ जनरली टीम के, जो आर्मी की लोगों की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उनके रिजर्वेशन देखता है। और हर एक स्टेशन में एक छोटा सा सेटअप होता है जहां पर ऑफिसर्स वेटिंग रूम होता है, जवानों के लिए भी होता है। बहुत ही वेल फर्निश्ड वेटिंग रूम होता है, टीवी, एसी, सोफा वगैरह फर्स्ट क्लास लगा हुआ। तो उसके बाद हम लोग सामान वगैरह लेके उस वेटिंग रूम में जाके वहां पर बैठे। मैं, कैप्टन राहुल दोनों थे वहां पर। तो उन्होंने बोला मुझे कि अ, अच्छा साहब को चाय बिस्कुट खिलाओ, है ना? तो जो एक सहायक थे साथ में हमारे आर्मी के, तो उन्होंने चाय और बिस्किट का ट्रे लेके पास में आए। तो मैं उसको भी धीरे-धीरे बैठ के खा रहा हूँ। 10-15 मिनट गुजर गए। क्या मैंने एक राउंड नेक टी-शर्ट पहना था और जीन्स था। तो कैप्टन राहुल ने बोला, डोंट यू थिंक दिस इज लुकिंग लिटिल आउट ऑफ पैटर्न, राइट? तो मैं फर्स्ट सरप्राइज हो गया। मैंने बोला आउट ऑफ पैटर्न क्या है? ये तो लेटेस्ट है, करंट, अभी अभी तो खरीद के लाया हूँ 2-4 दिन पहले। I could not realize that he wanted to convey कि when everyone is in uniform, I am in the CVs, मैं सिविल ड्रेस में वहां पर। तो उनका ये कहने का मतलब था कि मैं वहां पर आउट ऑफ पैटर्न लग रहा हूँ। तो जब मेरे को ये रियलाइज हुआ, मैंने अपने से बोला यस सर, एब्सोल्युटली यू आर राइट, आई विल जस्ट चेंज एंड कम बैक। तो मैं अपना यूनिफॉर्म लिया और तो ही टोल्ड दैट इट्स ए फील्ड एरिया। फील्ड एरिया जनरली वहां पर होता है जो लिमिटेड फैमिली एरिया होती है, ऑपरेशनल्स एरिया होता है, राइट? तो उसमें जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल वेयर द कॉम्बैट यूनिफॉर्म। कॉम्बैट यूनिफॉर्म आपने देखा होगा ना, वो जंगल जैसा यूनिफॉर्म जो देखा होगा फौजियों को पहनते हुए। तो फील्ड एरिया में वो यूनिफॉर्म पहना जाता है। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं वही यूनिफॉर्म पहनूं, कॉम्बैट वाला। तो तो ये मैं सब वही यूनिफॉर्म पहने हुए थे? सभी दूसरे कलर के यूनिफॉर्म में थे। जैसे
कैप्टन राहुल नॉर्मल एक ओजी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म होता है जो फॉर्मल ऑफिस वगैरह जाने के लिए पहनते हैं, बाकी दूसरे लोग कॉम्बैट्स में थे, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं भी पहन के आ गया। आने के बाद फिर बोले कि ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम टू गो, हमें अराउंड 45 मिनट्स लगेगा यूनिट जाने के लिए। तो हम लोग बाहर आए। बाहर आके मैंने देखा सामने एक बहुत ही फर्स्ट क्लास जिप्सी खड़ी थी। जिप्सी आपने देखी है? एक Yes, sir. फौजी जिप्सी, लाल बत्ती लगी हुई, पूरा चकाचक शाइन कर रही थी, राइट। मैं बहुत अंदर से अंदर खुश हो रहा था कि यार इतनी अच्छी गाड़ी मेरे को रिसीव करने के लिए आई। तो मैं आगे साथ में चल रहा था, मैंने जाके गाड़ी का डोर ओपन करके बैठने की कोशिश की। तो कैप्टन राहुल जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट, योर व्हीकल इज एट द बैक। Okay. ठीक है, सो ही टोल्ड मी योर व्हीकल इज एट। तो मुझे लगा हाँ भाई पीछे और कोई गाड़ी होगी, एंड तो एंड दैट इज फॉर मी, एंड ही सैट इन द व्हीकल। ठीक है, जब मैं पीछे गया, पीछे एक जीप खड़ी थी। इट वाज अ जीप, जो फौजी जीप आपने देखी होगी काफी सारी मूवीज में ना, वो टिपिकल वो जीप होती है, आवाज बहुत करती है। एंड तो मैं जाके जब उसका दरवाजा खोल के बैठने गया, तो कैप्टन राहुल टोल्ड, लेफ्टिनेंट योर व्हीकल इज एट द रियर, एट द लास्ट, दैट इज फॉर द सूबेदार साहब हु हैज कम। मुझे लगा और कोई अच्छी गाड़ी मेरे लिए पीछे खड़ी है शायद। तो मैं उसके दरवाजा छोड़ के मैं पीछे की तरफ फिर जाने लगा। तो पीछे देखा मैंने एक आर्मी की ट्रक खड़ी है। अच्छा, okay. सो दैट वाज द व्हीकल For all. that came for me to pick up। ठीक है, तो मैं बोला यार इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां, एंड नन ऑफ द व्हीकल इज फॉर मी, तो ठीक है चलो कोई नहीं, फॉर द टाइम बिंग। तो मैं जाके अपने गाड़ी में बैठने से पहले कैप्टन राहुल केम टू मी, मेरे पास नजदीक आए। बोले कि लेफ्टिनेंट चिन्मय, सो यू इट विल टेक 45 मिनट्स, आई हैव सम वर्क, एंड दी जेसीओ साहब आल्सो, उनका भी कुछ काम है, हम लोग काम खत्म करके हम लोग यूनिट जाएंगे। आपके साथ ये ड्राइवर रहेगा और 45 मिनट्स यहाँ से लगेगा, ड्राइवर को रास्ता पता है, आप ये गाड़ी लेके यूनिट पहुंच सकते हैं? He Okay. asked me very specific question। तो मैंने बोला गाड़ी लेके यूनिट क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या दिक्कत है? रास्ता इसको पता है, मेरे को बैठना है, गाड़ी पहुंच जाएगी। तो आई टुक इट, सर डेफिनेटली, व्हाई नॉट, आई विल एंश्योर दिस व्हीकल रीचेस द यूनिट बिफोर यू रीच। तो मैंने एक एज ए रेस्पेक्ट जो बोलते हैं ना, मैंने उसको उनको एश्योर किया कि हाँ ये क्या है, ये छोटा सा काम है, गाड़ी लेके यूनिट पहुंच रही है, कोई काम है? तो मैं जाके, तो वी ऑल सेपरेटेड, दे बोथ वेंट द अदर वे, उनका कुछ और काम था, और मैं ट्रक के आगे बैठ गया। पूरे हम रास्ते में जा रहे हैं, धीरे धीरे उस स्टेशन एरिया से हम लोग बाहर निकले। जो मेरे साथ बंदा था ना, वो मेरे से कुछ बात कर रहा है। हाँ, मेरे को उन्होंने जाने से पहले एक हथियार दिया। अच्छा। वो बोले कि फील्ड एरिया है, एंड सो यहाँ पर काफी सारे नक्सल एक्टिविटीज होते हैं, मुझे इस तरीके का उन्होंने बोला। तो ये हथियार आप अपने पास लेके चलो, एंड अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी हो तो मेरे को थोड़ा अंदर से लगा कि यार पहली पोस्टिंग में पहला दिन जा रहा हूँ, ये नक्सल की बात कर रहे हैं और हथियार मेरे को पकड़ा दिया है। बट एनीवे, वो तो जोश था ट्रेनिंग का, एकेडमी का, कि हाँ कुछ भी कर देंगे, तो हथियार को लेके मैं चुपचाप बैठ गया। रास्ते भर वो बंदे ने, जो ड्राइवर था, उसने मेरे से कोई बात नहीं की, मैं भी उससे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ कि पता नहीं, मैं अपने ईगो में बैठा हूँ कि यार ऑफिसर, मैं वो मेरे से बात करेगा, मैं क्यों उससे बात करूँ। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे, क्या हुआ, वो स्टेशन एरिया से हम लोग बाहर निकले, अपना सिटी एरिया से बाहर निकला, धीरे धीरे लेस पॉपुलेटेड एरिया की तरफ हम लोग जा रहे थे। करीब 20-25 मिनट हमने ड्राइव कर लिया था। एट वन वेरी आइसोलेटेड प्लेस, मेन रोड था, रोड ही था, यूनिट की तरफ जा रहे थे, बिकॉज आई डिडंट नो, मुझे रास्ता पता नहीं था। ही वाज द ओनली पर्सन हु न्यू कि यूनिट कहां पर है। तो आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट, नीदर मैंने पूछा कि यूनिट का रास्ता किस तरफ है। ठीक है, तो ट्रस्ट में मैं बैठ गया, हम लोग साथ में चले एक आइसोलेटेड एरिया में, मतलब धुंध भी पड़ी हुई है, एज आई टोल्ड दैट इट वाज लिटिल विंटर ये आल्सो।
विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, बहुत ज्यादा कम नहीं, आई थिंक हल्की। अटैक होने का भी थोड़ा डर होगा। हाँ, एक आइसोलेटेड एरिया में सडनली गाड़ी बंद पड़ गई, ओ। राइट। तो मैं बैठा, मैंने पूछा हाँ भाई क्या हो गया? हम्म, तो उसने बोला कि साहब आई थिंक गाड़ी स्टार्ट बंद हो गई एंड मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है। हम्म, मैंने बोला हाँ ठीक है देख लो, आई जस्ट टुक इट कैजुअली कि ठीक है देख लो। तो ही गॉट डाउन फ्रॉम द व्हीकल, हम्म, आगे जाके बोनेट खोला, देखा, बोला कि साहब कुछ ये नहीं चल रहा, आई थिंक नहीं नहीं सॉरी, वो गाड़ी से उतर गया। उतर जाने के बाद मुझे लगा कि गाड़ी का कुछ टूल निकाल रहा है, चेक कर रहा है, कुछ कर रहा है। 15 minutes passed. ओ, I didn't had any sight of that guy. मतलब पास में मुझे कहीं ना आगे ना पीछे ना गाड़ी के अंदर आया, मुझे दिख ही नहीं रहा है। और इतनी अर्ली मॉर्निंग थी, मे बी इट वाज, मैं बोला कि 4:30 अराउंड माई ट्रेन रीच्ड न्यू जलपाईगुड़ी एंड हम्म, 5:30 से 6 बजे के आसपास ये इंसिडेंट है, हम जहां पर खड़े हुए हैं। ओके। पास में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, और जो छोटे छोटे घर होते हैं वहां पर उस एरिया में ना, बेसिकली इट्स अ स्लम काइंड ऑफ फील आपको आएगा कि कच्चे मकान है, टीन शीट्स उसके ऊपर कवर्ड हैं, दूर दूर थोड़े से डिस्टेंस में थे रोड से, बट नो वन वाज विजिबल। तो मैं वेट कर रहा हूँ एंड दिस पर्सन इज नॉट कमिंग। 15-20 minutes has passed, मेरे को मतलब my heartbeat is increasing कि what has happened, I am just stuck, got stuck up in somewhere कि मेरे को ना, मैं किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और neither I can get down from the vehicle। एक और ये एक सबसे अंदर फर्स्ट टास्क होगा जहां तक मुझे लग रहा है कि ये क्या, करना, ये सबसे पहला टास्क आपको दिया गया था पहला टास्क मतलब मैं तो यूनिट पहुंचा ही नहीं ना, मैं तो पहला दिन गया हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए, ये तो जाके। रास्ते बात है, अभी तो हाँ, टास्क शुरू ही नहीं हुआ है। पहला काम दिया गया, वो भी उसमें भी बिल्कुल बीच करेक्ट, रास्ते में गाड़ी रुक गई। करेक्ट, करेक्ट। सो मैं वेट किया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, एंड दैट गाय डिडंट टर्न अप। वो बंदा मुझे दिखा नहीं, ना हम्म, मुझे रियर व्यू मिरर से दिख रहा है, ना सामने दिख रहा है, ना कहीं दिख रहा है, ना वो गाड़ी के अंदर आ रहा है, और मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं, मैं अपना हथियार लेके वहीं बैठा हूँ। हम्म, ठीक है, उसके बाद आफ्टर 5 minutes आई कुड सी देयर आर टू पीपल वॉकिंग फ्रॉम अराउंड 100 मीटर के आसपास गाड़ी के आगे, दो हम्म, लोग चल के आ रहे हैं गाड़ी की तरफ। मुझे लगा यार कोई बंदे हैं आसपास के, लोकल होंगे, आई हम्म, कैन सीक फॉर असिस्टेंस, हेल्प हम्म, मांग सकता हूँ। हम्म, ठीक, तो जैसे जैसे वो बंदे नजदीक आए, एक बंदा नॉर्मल था, एक कैप पहना था, दूसरा बंदा उसने अपने मुंह को कवर कर रखा था, नॉर्मल ड्रेस में थे, मतलब एक जीन्स था, एक बंदे का टी शर्ट था, एंड एक बंदा कैप में था जिसका शक्ल दिख रहा है क्लियरली, और एक बंदे का शक्ल नहीं दिख रहा है, वो कवर किया हुआ है। तो दोनों पास में आए मेरे गाड़ी के, मैं लेफ्ट साइड में बैठा था, गाड़ी को नॉक किया उन्होंने। जब वो बाहर से नॉक करे, मैं ग्लास चढ़ा के बैठा हूं, मैं एक टाइम के लिए सोचा कि मैं खोलूं ग्लास को या नहीं खोलूं, शुड आई इंटरैक्ट विद देम और नॉट। मेरे को उनकी पुरानी बातें याद आ गई कि फील्ड एरिया है, यहाँ पर नक्सल एक्टिविटीज होते हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, राइट। सो विद दैट डिलेमा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इनके साथ मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, शायद मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं मिले पूछने के लिए, कम से कम इनसे मैं धीरे से थोड़ा सा इतना स्पेस ग्लास मैंने डाउन किया जिससे मेरी आवाज वहां पहुंचे। मैं उनसे कुछ बोलने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, मैंने बोला मैं आर्मी से हूँ, और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मेरा ड्राइवर शायद कोई हेल्प लेने के लिए गया है, वो है नहीं। तो उन्होंने बोला लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने बोला मैं आपको बोला ना कि मैं, गाड़ी हमारी ब्रेक डाउन हो गई, मैं यहाँ गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर हेल्प के लिए गया है, और मैं आर्मी से हूँ। मैं उनको बार बार स्ट्रेस कर रहा था क्योंकि मैं देख रहा था कि सिविलियन है, तो कम से कम आर्मी बोलने से दे विल अंडरस्टैंड, एंड दैट टू मैं यूनिफॉर्म में था, और आर्मी की गाड़ी सब पहचानते हैं। तो उन्होंने बोला हम लोग भी सब आर्मी से हैं, हम लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, ओके, हम दोनों आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, एंड हम लोग
जो बोलते हैं ना कि एक अंडर कवर ड्यूटीज जिसको बोलते हैं कि आप सिविल ड्रेस में रहोगे, इंटेलिजेंस गैदर करोगे, ये उनका काम रहता है। आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट का क्या रहता है कि दे गैदर इंफॉर्मेशन। सिविल में रहते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे, लोकल पब्लिक के साथ घुल मिल के रहेंगे, एंड दे टेक आउट इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है हमारे आर्मी के किसी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला आई कार्ड दिखाइए अपना। अच्छा। तो मैंने अपना आईडी कार्ड निकाला, मैंने अपना आईडी कार्ड निकाल के पकड़ाया। मैं ऊपर ही बैठा हूँ, नीचे नहीं उतर रहा हूँ, हथियार भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी तक उनको वैलिडेट नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं हूं, एंड मैंने भी इंस्टेंटली मान लिया, क्योंकि ऐसी यूनिट्स होती हैं। एंड तो उनमें से एक बंदा, जो बंदा मुंह कवर किया था, उसने मेरा आई कार्ड लिया, अपने दूसरे साथी को बोला, ठीक है, उसका नाम लेके बोला, सुरेश, सुरेश मैं जब तक ये वैलिडेट करता हूँ आईडी कार्ड, आप एक बार इनसे डिस्कस कर लो कि क्या और क्या क्या है, आप बात कर लो। मैं 5 मिनट में आईडी कार्ड वैलिडेट करके लाता हूँ। ठीक है, उस टाइम पे फोन वोन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, लैंडलाइन वगैरह चलते थे, फोन वोन नहीं हुआ करते थे। तो होते थे फोन, बट बहुत ही लिमिटेड स्केल में होता था। तो वो बंदा जो कवर्ड था, उसने मेरा आईडी कार्ड लेके वो वैलिडेट करना चला गया। ठीक है, और वो बंदा उसके बाद मुझे दिखा नहीं साइड में कहीं। मेरा आईडी कार्ड, आर्मी का आईडी कार्ड, जो जनरली बहुत सेंसिटिव होता है, लोग बोलते हैं कि इंसान गुम हो जाए, आईडी कार्ड नहीं गुम होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके की उसकी सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि आपका आईडी कार्ड लेके कोई गलत इस्तेमाल करके कोई गलत काम, कोई भी टेररिस्ट हो, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो, वो कर सकता है। तो इसलिए आपका आईडी कार्ड हमेशा इंसान के गले में लटक के रहता है, कि इंसान का गला कटने के बाद ही आईडी कार्ड जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके की उसकी सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं तब तक 10 मिनट गया, मैं इनको बोला कि आपके जो बंदे थे साथ में वो आए नहीं। बोले हाँ वो वैलिडेट करके आएगा, आप नीचे उतरिए गाड़ी के। तो दूसरा बंदा था, मेरे को बोला आप नीचे गाड़ी से उतरिए। अच्छा। तो मैं मतलब थोड़ा घबराहट तो रहेगा कि एक नए जगह पे नए लोग, एंड क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एनी हाउ मतलब फेस तो करना है उसको, यू हैव टू फेस दैट। कितने देर मैं ऊपर बैठ के रहूंगा, है ना? शायद मैं 15 मिनट पहले नीचे उतर के अपने बंदे को ढूंढ लेता, लेकिन मैंने नहीं किया उसको। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे वो हथियार हाथ में पकड़ा हुआ जोर से, कि मेरी हथियार कोई छीन नहीं ले, है ना? तो मैं नीचे उतरा गाड़ी से। गाड़ी से उतरने के बाद ये बंदे ने मेरे को बोला, आप अपने आप को फौजी कहते हो, आपको पता है ये एरिया एक रेड लाइट एरिया है जहां पर आप खड़े हो? आप यहाँ पर आए कैसे? आप यहाँ पर कल रात को आए थे या सुबह आए हो? तो वो बंदा मुझे उस तरीके का बोलने लगा कि आप जिस जगह पे खड़े हो, इट्स आउट ऑफ बाउंड रेड लाइट एरिया। So red light means more active area. Red light means where it's not active area, basically uh, the area of prostitutes, I would say. Okay. Right, so it's called a red light area where people go, and you know that, right? Right. So वो मेरे को पूछ रहा है कि the place where you are standing, this is the out of bound, जो कि Okay, that's generally why these you areas asked. are out of bound. You cannot go or enter these areas when you are in uniform, or when you are in the service or anywhere, right? ये सारे illegal Areas. red light areas हैं, and you are standing right there. मेरे को पूछा आप कल रात को आए थे या सुबह आए हो? ठीक है, तो मैं मतलब आई वाज लिटिल सरप्राइज, क्या हो रहा है क्या नहीं मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। एंड इतने में इन बिटवीन दिस आई कुड सी फ्रॉम द रियर ऑफ द व्हीकल, मैं अपने गाड़ी के उल्टे मुंह करके खड़ा हूँ, मैंने दूर से देखा मेरा बंदा तेज चलते हुए आ रहा है, करीब 400-500 मीटर दूर में, 300-400 मीटर दूर में। द ड्राइवर इज in fact speeding up and trying to reach me, and I could see that. मेरे को अंदर से एक इंस्टेंटली ऐसा एक जो खुशी मिली ना कि यार कोई बंदा, मैं मतलब इस तरफ सब
फंसे जा रहा हूँ, कोई ना कोई मेरे को जानता है ना। तो मैं बोला आप यहाँ वेट कीजिए, मेरा बंदा वहां आ रहा है, आई थिंक ही इज द गाय, मेरे को दिख रहा है वही है। एंड तो मैं उस एक्साइटमेंट में क्या किया, मैं उस बंदे को तरफ चलने लगा थोड़ा, और उसको बोलने के लिए आवाज की कि जल्दी आ जाओ, थोड़ा तेज तेज जल्दी आ जाओ। मैं उसको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, तो उस बंदे ने भी हाथ ऊपर उठाया कि हाँ भाई चलो, मेरे को तसल्ली हुई कि ये मेरा ही बंदा है, दूर से मेरे को पहचान रहा है, गाड़ी पहचान रहा है। इतना सब 45-50 सेकेंड्स या 1 मिनट के करने के बाद जब मैं वापस इस बंदे के पास मुड़ा, वहां पर कोई नहीं था। द सेकेंड गाय जिसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, मैं बोला कि मेरा बंदा वहां से आ रहा है, एंड दैट गाय वाज ही हैड वैनिश्ड, बंदा नहीं था वहां पर। So means the both of them were not from army back then. both of them have just got out somewhere, I really do not know, and one of them had taken my ID card. Oh no. And this is the first day of my reporting to my unit, right? मैं इतना क्या, I just could not react कि मुझे करना क्या है यहाँ पर। एंड इतने में वो बंदा मेरा आ गया पास में, बोला कि साहब आप गाड़ी से क्यों नहीं उतरे? मैं तो यहाँ पर गया था ये बुलाने के लिए गैरेज वाले को, गराज वाला वहां पर मिला नहीं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार एक गड़बड़ हो गई, एंड आई डोंट नो टू पीपल, यहाँ पर कोई आर्मी इंटेलिजेंस ऑपरेट करती है क्या? 2 लोग आए थे, एंड एक इतना इतना हाइट का होगा, मैंने हुलिया बताया उसको, एंड एक बंदे ने मेरा आईडी कार्ड ले गया। बोले साहब यहाँ पर कोई आर्मी इंटेलिजेंस की यूनिट यहाँ पर नहीं है, एंड शायद आपका आईडी कार्ड किसी गलत आदमी के हाथ लग गया। आई वाज जस्ट गेटिंग शैटर्ड कि मतलब क्या हो गया। पहला दिन मैं अभी पहुंचा भी नहीं यूनिट, एंड समथिंग दिस काइंड हैज हैपेंड। Exactly. यही बातचीत होते होते आई सॉ दैट एक जिप्सी और एक जीप हमारी व्हीकल को क्रॉस करके जस्ट गई, अराउंड 50 मीटर आगे जाकर रुक गई। दे रिवर्स, दे केम बैक। वो कैप्टन राहुल और वो सूबेदार साहब की गाड़ी थी। तो बोले कि यार व्हाट हैपेंड, व्हाई यू गाइज आर हियर? आप लोगों को इतने टाइम पहले आपको यूनिट पहुंचना था, एंड इट्स ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया है, एंड यू शुड बी आइडियली इन द यूनिट। तो फिर मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। तो कैप्टन राहुल ने, वो जो ड्राइवर थे, उनको बोला कि आप गाड़ी ठीक करवा के आ जाना, मैं साहब को गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, जा रहा हूँ यूनिट में। तो ही डिडंट, तो मैं बोला कि सर कैसे होगा, हाउ आई नीड टू रिएक्ट टू दिस, क्या करना है मुझे, आई रियली डू नॉट नो। मेरी आईडी ना, आईडी कार्ड के बिना यू विल नॉट हैव एंट्री इनटू एनी आर्मी यूनिट, राइट? एंड यू नो दैट। और दूसरा है, मे बी आर्मी विल हैव सम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कुछ इन्वेस्टिगेशंस होगा कि इन क्या हुआ है एग्जैक्टली, यू हैव लॉस्ट इट, यू हैव गिवन इट समवेयर, या पता नहीं, जिसमें आपका भी कोई इल इंटेंशन हो सकता है, राइट? वी डू नॉट नो। डिफरेंट एंगल्स निकालेंगे वो लोग, डिफरेंट एंगल्स निकालेंगे, राइट? तो ऐसा करके मैं शांत होकर चुपचाप बैठ गया जिप्सी में। हम लोग चले यूनिट की तरफ। यूनिट पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले सो कैप्टन राहुल ने मेरे को बोला कि इट्स ए ट्रेडिशन फॉर दी एनी टाइम एनी ऑफिसर जो पहली बार यूनिट ज्वाइन करते हैं, ही along with the weapon और कॉम्बैट ड्रेस में, he runs to the unit and reaches, गाड़ी में नहीं आता है। तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ के यूनिट के पास पहुंचना पड़ेगा। जनरली इसको एक बीपीईटी रन बोलते हैं, बैटल प्रैक्टिस एफिशिएंसी टेस्ट, राइट? सो 5 किलोमीटर यू हैव टू रन विद द बैटल लोड एंड द वेपन, जो वेपन आप यूज करते हो। तो मेरे को 5 किलोमीटर पहले उन्होंने उतार दिया। इतना सब मेंटल ट्रॉमा होने के बाद, बट आई हैव टू, वो मुझे करना है क्योंकि इट्स द ट्रेडिशन ऑफ द यूनिट। यूनिट का ये ट्रेडिशन है, वो करना है। तो मैं हथियार कंधे पे डाल के मैं दौड़ना शुरू किया। कैप्टन राहुल की गाड़ी आगे आगे जा रही है, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ। एंड आई टूक अराउंड 30 minutes to
कंप्लीट दैट 5 किलोमीटर रन। हम्म, 5 किलोमीटर दौड़ के पहुंचने के लिए 30 मिनट मुझे लगे। मैं जब वहां पर यूनिट गेट के पास पहुंचा, वहां पर बेसिकली इन सिविल वी हैव द पुलिस, वहां पर जनरली वी कॉल देम रेजिमेंटल पुलिस, आरपी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हर एक गेट पे रेजिमेंटल पुलिस होते हैं, फौजी होते हैं। तो उन्होंने पूछा, तो मैं तो यूनिफॉर्म में था, मेरी रैंक लगी हुई थी, लेफ्टिनेंट का रैंक था। तो उसको तो दिख रहा है कि कोई एक ऑफिसर है। मैं जब दौड़ के वहां पहुंचा तो बट फिर भी एज ए प्रोटोकॉल उन्होंने मुझे आइडेंटिटी कार्ड मांगा कि टू अलाउ मी टू एंटर द यूनिट गेट। तो मैंने बोला मेरे पास तो आईडी कार्ड है नहीं। तो बोला कि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। कैसे एंटर करेंगे आपको, कैसे मैं, मतलब हाउ डू आई वैलिडेट यू, हु आर यू। तो इन द मीन टाइम कैप्टन राहुल की गाड़ी पास में आके रुकी और उन्होंने बोला कि नहीं साहब, यूनिट में आए हुए हैं एंड आपको अलाउ कर दो। तो उन्होंने बोला तो ही अलाउड मी, तो मैं अंदर गया। तो जब अंदर जाके मैं वहां पर यूनिट के अंदर पहुंचा, तो जनरली जो प्रोसेस है कि बिफोर एनीथिंग इज वैलिडेटेड, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना, मेरा आईडी कार्ड नहीं, आई लॉस्ट माय आईडी कार्ड। तो टिल द टाइम एनी डिसीजन इज मेड, हर एक यूनिट में एक क्वार्टर गार्ड होता है। क्वार्टर गार्ड एक एरिया होता है जिसमें बेसिकली यूनिट में जितने डेकोरेशंस हैं, जितने मतलब इट्स बेसिकली स्टेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ ए यूनिट, राइट। उसमें जितने आपके मतलब आपकी यूनिट ने मेडल्स जीते हैं और जितनी हथियार हैं, वो सारी चीजें वहां पर रहती है। ठीक है, वहीं पर एक कोने में एक सेल भी होता है। सेल यू नो, एक स्मॉल प्रिजन, ओके, जेल जैसा बोलते हैं, जहां पर कोई भी अगर डिसिप्लिनरी केस है, कुछ किसी का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई फ्रॉड पकड़ा गया है, कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है, या कोई एंटी सोशल एलिमेंट पकड़ा गया है, तो उनको वहां रखा जाता है। ओके, तो मेरे को मेरा सामान लेके सीधा वहीं पर उन्होंने लैंड करवाया। उस जेल उस जो छोटा सा सेल था क्वार्टर गार्ड का, कि कमांडिंग ऑफिसर साहब जब तक नहीं आएंगे, as you are not validated yet, you are the same Lieutenant Chinmay Nayak, so you need to be here only till the time your investigations are not completed. ओके, ओके, तो जेल देखा है कैसा होता है, टिपिकल वैसा ही जेल है, मतलब जिसमें कुछ नहीं है, एक मतलब एक वॉश बेसिन है और एक वही छोटा सा एक जो वॉशरूम वगैरह के लिए यूज करने के लिए है, सेम एक छोटा सा रूम है, बाहर लॉकिंग सिस्टम है, अंदर एक बेंच से थोड़ा सा चौड़ा एक बेड टाइप है लकड़ी का, उसी पे तुम बैठना है, उसी पे सोना है, सब कुछ करना है, नॉर्मल जैसे टिपिकल एक जेल में जैसा तुमने मूवी में देखा है वैसे ही है एग्जैक्ट। ठीक है, वो तो मैं जाके बहुत ही डिमोरलाइज्ड, मैं वहां पर जाके बैठ गया, वेट करने लगा। तब अराउंड 8 साढ़े 8 हो रहा था। तो बोले कि सीओ साहब 9:30 10 बजे आएंगे, तब आपकी उनके सामने पेशी की जाएगी। ओके, मार्च अप टू हिम। तो मैं वेट किया, उसके बाद मैंने, हाँ, एक सहायक उन्होंने दिया था कि जब तक मैं वहां पर रहूं तो कुछ पानी चाहिए, खाना चाहिए, मेरे को ब्रेकफास्ट लाके एक प्लेट में वहीं सेल में ही दिया गया और मैं वहां पर ब्रेकफास्ट खाया, वहीं बैठा था। एक सहायक, आर्मी में एक सहायक जो आपका बडी होता है, वो आपको एलोकेट हुआ मेरे को कि कुछ जरूरत हो तो आप इनको देखभाल के लिए। तो मैं वेट किया, बहुत क्यूरोसिटी से वेट किया एंड मैंने 10 बजे सीओ साहब आए। ठीक है, वो अपने ऑफिस में थे, मेरे को वहां से सेल से उन्होंने निकाला, मेरा सामान वगैरह सब वही सेल में ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना यूनिफॉर्म चेंज करके मेरे को मार्चिंग करा के वहां पर सीओ साहब के ऑफिस में लेके गया है। जय। तो जैसे मैंने अंदर घुसा, मैंने सल्यूट किया, तो बोले कि यस, आई हर्ड दैट यू लॉस्ट योर आईडी कार्ड।
आपने अपना आईडी कार्ड लॉस किया है, आप अपने सामान की देख रेख नहीं कर पाते हो, देश की क्या देख रेख करोगे, बाप रे बाप। राइट? अगर आप अपने सामान की देख रेख नहीं कर पाते हो, देश की क्या देख रेख करोगे? तो आई थिंक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे पास दो चॉइस हैं, इधर आप ऑफिसर बनने के लायक नहीं हो, हम वो लिख के रेकमेंड करके आपको आपके घर भेज देंगे, या आपको फिर से अपनी ट्रेनिंग सेंटर वापस आपको भेज देंगे, जहां पर आपको फिर से ट्रेन किया जाएगा। दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं थे, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग एकेडमी, एक मतलब एक साल की ट्रेनिंग, एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज से आप होके हर एक चीजें कंप्लीट करके पास करके आप आते हो, और काफी मेहनत। सेकेंड टाइम वहां पर इमीडिएटली, क्योंकि आप यू गो बैक देन अगेन, आप साल 1.5 साल पीछे अपने लाइफ में चले जाते हैं। दूसरा तो बिल्कुल ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था मुझे, जो कि आपको लिख के कि यू आर नॉट फिट टू बिकम एन ऑफिसर, आप अपने एक आईडी कार्ड, एक डॉक्यूमेंट का आप ऑफिस, आर्मी की सीक्रेसी, आर्मी के ये सब कैसे रखोगे, राइट? तो मैंने बोला सर, आई रियली डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड, बट तो कुछ बोलने लायक था भी नहीं मैं उस वक्त। तो मैं सुन रहा हूँ, एंड वो बोले ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर आई थिंक कपल ऑफ डेज, 2-3 दिन लगेंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन गेट कंप्लीटेड, कहाँ पर आपकी गलती है, कहाँ पर नहीं है, वो सारी चीजें एक बार सामने निकल के आएगी, फिर वी विल टेक ए डिसीजन कि आपको क्या करना है, एकेडमी जाओगे, घर अपने वापस जाओगे, क्या करोगे। तो एनीवे, इनफैक्ट मैं विथ मिक्स्ड रिएक्शंस मैं वापस आया, तो बोले कि ठीक है, वहां पर जहां पर सेल में इनको रखा गया है, आई थिंक वहां पर थोड़ी ये है, यू शिफ्ट हिम टू दी मेंस बैरक। ओके। बोले कि वहां पर थोड़ी द कंडीशंस आर नॉट दैट गुड, एंड वी विल ट्रीट यू लिटिल बेटर, and though you have not proved yourself that you are Lieutenant Chinmay, and but still we will uh, treat you little bit better, go to the barrack where the men stay, ओके। जो हमारे जवान होते हैं उनका बैरक होता है, राइट? एंड ऑफिसर्स जो होते हैं जनरली ऑफिसर्स मेस में रुकते हैं, तो ऑफिसर्स मेस में सिंगल एकोमोडेशन होता है, वेल फर्निश्ड ये होता है, तो मेरे को लोगों के बैरक में भेजा कि वहां पर इसके लिए एक बिस्तर लगवा दो, बेड लगवा दो, एंड वहां पर लेट हिम स्टे टिल द टाइम द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ओवर। ओके। तो मेरे को लेके एक कोने में एक बेड डलवा दिया, और मैं अपना सामान सुमून वहीं पर, तो बोले कि आप रूटीन एक्टिविटीज अपनी शुरू करो, जो भी आपका मॉर्निंग का रूटीन है, ऑफिस में जाके जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है, वो सारी चीजें मैं अटेंड करने लगा वहीं से। एक दिन गया, 2 दिन गया, मैं इतना डिमोरलाइज था, मैं कहीं नहीं जनरली बाहर नहीं निकलता था, मैं 2 दिन 3 दिन तक मैं अंदर ही बैठा रहा। वो खाना मेरे को एक सहायक था मेरा, जो मेरा बडी था, वो लंगर से, मतलब जहां पर हमारे जवानों का खाना बनता है, वहां से प्लेट में ले आता था, मैं वहीं पर बैठ के खाता था। मेरे को बाहर जाने से शर्मिंदा महसूस हो रही थी होगी बिल्कुल। कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने दिस इज लाइफ द की, टाइम जब लगता है कि मैं क्यों उतरा, या मैंने क्यों सोचा कि बात कर लेता। पता नहीं, बट मुझे लगा कि यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, और मैं मतलब ये और इररिपेरेबल है, ये रिपेयर नहीं हो सकता है। वो थॉट मेरे दिमाग में रहा, और मैं अंदर वहीं बैठ रहता था, लंच मेरा वहीं आता था, वहीं खाता था, वहीं, मतलब इस तरीके का मेरा 2-3 दिन गुजरा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि लोग देख के ये नहीं बोले कि यार ये ऑफिसर है जो मतलब अपना आईडी कार्ड नहीं संभाल पाया। एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं बाहर निकलना कम कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर जब 3 दिन 4 दिन हो गए, मेरा रूटीन वही चल रहा था, मेरे को डेली लेके सीओ साहब के सामने दिन में 10 बजे मेरे को पेशी होती थी, मैं उनके सामने मार्च अप करके जाता था, सैल्यूट करता था, एंड बोलते थे कि, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि जस्ट थिंक ओवर वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग,
और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था उसका। हर दिन मेरे को वही सेम सवाल वो पूछते थे कि did you realize where all it went wrong? Because if you are not learning, you have failed somewhere. If you are unable to learn that where you have failed and how you are going to overcome that, then you are stuck up at that place only. तो डेली मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। 3 दिन गया, 4 दिन गया, फिर मैं सोचा कि यार कितना दिन ऐसे चलेगा। ठीक है, इट्स ओके, अगर मेरी गलती हुई है, आई शुड एडमिट दैट फर्स्टली। हो गई है गलती एंड इट हैज हैपेंड, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ए थियोरेटिकल नॉलेज एंड ए प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। बहुत सारी लेसन्स मेरे मतलब घूम घूम के सामने आ रही थी कि जो लोगों को ट्रस्ट करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तुम्हें दी जाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना सीरियसली हमें लेना चाहिए। तो हमेशा वो चीजें मेरे दिमाग में अभी आने लगी। मैं बोला नहीं यार, इट्स एनफ, लेट्स मूव आउट नाउ। जो होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैं एकेडमी जाऊंगा या मेरे को घर वापस भेज देंगे, इट्स नॉट इन माई हैंड्स, राइट। तो बट व्हाई शुड आई बिहेव लाइक दैट बिफोर द फाइनल फेट इज अनाउंस्ड, है ना। सो दीज आर द डेज, लेट मी लुक एट द have a closer look of the army, जिसके लिए मैंने passionately अपने आप को prepare किया था। I went through rigorous training of a year. So let's when there is an opportunity to give it a close look कि यहाँ होता क्या है, क्या लोग करते हैं, और मैं अंदर बैठा हुआ हूँ चुपचाप, not done। तो मैं क्या करने लगा, I started visiting the अपने यूनिट के दूसरे एरिया को मैं विजिट करने लगा। खाना खाने में लोगों के लंगर में जाने लगा, जहाँ पर उनका एक साथ 50, 70, 80 लोग, 100 लोग बैठ के खाना खाते हैं, डाइनिंग हॉल होता है, ठीक है। वहां पर जाके खाने लगा, रादर देन अपने मतलब जिस बैरक में मैं रहता था वहां पर खाना मंगाना बंद कर दिया। जब मैं वहां पर एक बार डिनर के लिए गया था, ये आई थिंक 5th डे था, इट वाज समवेयर 5th और 6th डे, 5th डे। तो मैं बैठ के खा रहा था, बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, है ना। दूर में एक कोने में एक बंदा मुझे दिखाई दिया, जिसकी शक्ल वो सेकंड वाले बंदे से मिलती जुलती थी। ओके, जिन्होंने आईडी कार्ड दिया था वो वैलिडेशन? नहीं, जो सेकंड वाला बंदा, आईडी कार्ड वाले का चेहरा मैं नहीं देख पाया हूँ, वो कवर्ड था। ओके, जो टोपी पहना था उसका चेहरा मुझे दूर से पता नहीं उसी जैसा दिख रहा था कि ये वही कहीं मैच है, देयर इज सम मैच। ओके, पहला दिन मैंने वेट किया, उसको देखा, मैं उसकी तरफ नजर देख रहा था, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, एंड मैंने उसके बाद उसके एक्टिविटी में थोड़ी तेजी महसूस की कि जैसे वो सडनली उठ के मेरे को अवॉइड करके निकल जाना चाहता है। ठीक है, जैसे मेरे को ये लगा, मेरे को थोड़ा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सस्पिशन हुआ कि देयर इज समथिंग, कुछ एक लीड मेरे को मिल रहा है जो मेरे केस को सॉल्व कर सकता है। पहला दिन उस दिन गया, अगला दिन मैं फिर उसी टाइम पे आया। मैंने बोला आज इस बंदे को मैं ऑब्जर्व करूंगा पूरी टाइम में, 2.5 घंटा 3 घंटा जो डिनर टाइम है मैं बैठा रहूंगा, एंड आई विल ऑब्जर्व दिस गाय कि कब आ रहा है, क्या है, एंड फॉलो हिम एंड आई विल कैच हिम। तो अगला दिन मैं टाइम से पहले जाके पहुंच गया, वहां पर चुपचाप बैठा रहा, एंड ऐसे नॉर्मल लोग भी बातचीत कर रहे थे, कहाँ से हो, क्या है, ये सब जैसे। तो देखा थोड़ी देर में वो बंदा खाना खाने के लिए आया। खाना खा के लेके वो कोने में बैठा। जैसे ही उसने खाना खाने के लिए बैठा, मैं उठ के उसके पास गया सामने। मैं जब सामने उसके गया, उसको देखा, उसके चेहरे से हंसी निकल गई। मैंने बोला हाँ भाई, अभी तू सारा कुछ बताएगा या जो दूसरा बंदा जो आई कार्ड लेके गया है वो बताएगा? तो वो मुझे लेके गया एक बंदे के पास, एंड बोला कि साहब ये आपका वो पट्टी वाला आदमी है जिसने आई कार्ड लिया है। ओके, कौन था? तो वो ये दोनों लोग मेरे ही यूनिट के थे, एंड दे हैड प्लान्ड दिस एक्चुअली टू गेट टू नो हाउ इन डेप्थ I am responsible for my acts, my activities. ये हर एक ऑफिसर जब यूनिट में ज्वाइन करता है, ओके, तो मैं I'll come to that। तो जब ये पता चला, फिर ये सारा कुछ हुआ, एंड
आई कार्ड मैंने उससे लिया, है ना. हम्म, ही वाज तो उसके अगले दिन मेरे को सीओ के, इट वाज 7th डे, नेक्स्ट डे वाज द 7th डे, सीओ साहब के पास मेरी पेशी हुई एंड आई कार्ड मेरे पॉकेट में था. तो सीओ साहब ने बोला यस, सो एनी प्रोग्रेस. हम्म, तो मैंने बोला सर आई गॉट माय आईडी कार्ड. तो उसने बोला लेफ्टिनेंट चिन्मय, वेलकम टू द यूनिट, वेलकम टू द फैमिली. applause. ठीक है. सो दैट वाज समथिंग, वो एक मेमोरेबल. एंड सी, व्हेन यू आर रिस्पांसिबल फॉर समथिंग, देन यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर समथिंग आल्सो. Exactly. कितनी सारी चीजें बोला कि यू टुक 7 days, यू टुक 7 days बिकॉज मुझे पता था रीजंस क्या है. 4 दिन तो मैं घर रूम में ही बैठा रहा, बाहर नहीं निकला ना. शायद पहले दिन ही मैं बाहर निकलता, लोगों को मिलता, घूमता, मुझे वो लिंक पहले दिन से ही पता चलता. सो द मोर आई डिलेड टू गेट इनटू माय रूटीन लाइफ, the similar delay I am in fact will happen in achieving my goals or objectives also. तो ये कहानी खत्म हुई. उसके बाद सीओ साहब ने, किया क्यों, मतलब व्हाट्स द रीजन? हाँ मैं उस पे आता हूँ, I'll tell you. तो उसके बाद सीओ साहब ने बोला ओके नाउ आप साहब को ऑफिसर्स मेस में शिफ्ट करो. तब then he felt that yes, now my initial grooming has been done, and then I was shifted to the officer mess after 7 days. 7 day में dedicated एक quarter with all furnished, जो भी रहता है mess officers में रहता है, जहाँ पर you get some people are there to look after, right? So it's a different life altogether than thereafter. So किया क्यों? Actually these are something, एक tradition है आर्मी का. So whenever any officer visits his or her own unit, उस टाइम पे इस तरीके के कुछ सिविल में हम लोग प्रैंक्स बोलते हैं, बट आई वुड नॉट कॉल देम प्रैंक, रेदर आई विल कॉल देम द वे टू ग्रूम द यंगस्टर्स, कि अपनी सिचुएशन आप हैंडल कैसे करते हैं. एकेडमी में आप क्या करके आए, थियोरिटिकल आप क्या पढ़ के आए, बट व्हेन इट्स द टाइम टू फेस द रियल सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ, वेयर डू यू स्टैंड. एंड इनफैक्ट ये एक बहुत ही बड़ा लेसन भी होगा कि अब से अवेयरनेस रखनी है. ये तो बहुत छोटा सा कार्ड था, लेकिन आगे भी नेशन के डिसीजन में या वॉर के टाइम पे, तो दैट या आई कैन अंडरस्टैंड नाउ. So mental trauma, physical stress, the where you are going to land up, एक ऑफिसर बन के जहां पर रेलवे स्टेशन में you get a bouquet welcome and you are so cordially welcome, and you go and land up in a jail. So what is happening with your life? Exactly. But you need to manage your life in those difficult times also. So that is how in fact these are all planned and executed so that it gives कि better क्या है, कितना डेप्थ में है बंदा, right? ये इन चीजों को लेके दिस स्मॉल डिफिकल्टीज इन हिज और हर लाइफ, वेदर ही इज मोरली गेटिंग डिप्रेस्ड, मेंटली डिप्रेस हो जाता है, या ही इज ट्राइंग टू फाइट इट आउट एंड कम आउट ऑफ इट. तो बहुत सारे लेसन्स इसमें आपको मिलेंगे. जैसे स्टार्टिंग में कैप्टन राहुल ने बोला ये गाड़ी को यूनिट तक लेके जा सकते हो. यार गाड़ी को यूनिट, गाड़ी तो अपने आप चलेगी, वहां पहुंच जाएगी, बट there is a lot of gap between a cup of tea and your lips. वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए भी you never know, something will go wrong in between. Right? So जो भी responsible, however small it may sound or look like, go little deep into that. आपको लगेगा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना कि अरे ये काम तो मैं कर दूंगा, बट वो इन डेप्थ प्लानिंग, इन डेप्थ एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जरूरी है. उसकी गहराई पे डेप्थ में जाना जरूरी है कि ये बंदे ने मेरे को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस देयर. तो लाइफ में हम जब कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है एग्जैक्टली, व्हाट आर द डिलीवरेबल्स, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है.
and what could be the challenges that could come in between. We should be prepared for it, right? उसके बाद जितने इनफैक्ट ये हैं अपने बीच में जितने सारे वो गाड़ी रुक गई मैंने सडनली, सो एज एन ऑफिसर इट्स नॉट दैट कि वो मेरे को लेके जाएगा, अगर वो मेरे को लेके भी जा रहा है आई शुड बी अवेयर ऑफ वेयर आई एम गोइंग. राइट. मैं कंप्लीटली अपनी लाइफ जर्नी में किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ कि भाई ये मेरे लाइफ को ड्राइव करके चले. इफ आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट सेल्फ अवेयर वेयर आई एम हेडिंग टू, वेयर आई एम गोइंग, तो आई विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पीपल कि ये बंदा क्यों नहीं आया वापस. राइट. सो वी नीड टू हैव दैट कंट्रोल एज वेल. और उसके बाद द मोमेंट यू फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, गेट डाउन एंड फेस इट फर्स्ट. मैं जो आधा घंटा गाड़ी के अंदर कि भाई पता नहीं क्या होगा, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, राइट. एम्बिग्यूटी को जितनी जल्दी फेस करोगे अनीशा, उतनी जल्दी वो एम्बिग्यूटी सिचुएशन क्लियर होगी. एम्बिग्यूअस सिचुएशन को ज्यादा टाइम नहीं रखना है लाइफ में. You need to in fact move through the ambiguous situations so that it becomes little clearer to you. जितना टाइम आप ambiguity को देख के बैठोगे उतना टाइम you are delaying yourself to get to the solution. Actually, like listening to you, I can imagine कि क्या पिच. In fact मेरा मन कर रहा है कि इस पे मैं मूवी बनाऊं क्योंकि from the start to end, first of all there is the person who is not aware कि ठीक है रास्ता है पहुंच जाऊंगा, and then suddenly ऐसी situation आती है, at the end gets to know कि ये तो prank था, but इससे जो lesson मिला वो life learning है. So indeed I can understand that this part is like बहुत मुश्किल से. मैंने बोला ना सर आप पे जो ट्रेजर है यही ट्रेजर हम लोगों के साथ शेयर करें, तो ये लिटरली ट्रेजर है जो कि मतलब मैं सुन रही हूँ तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि शिट फिर क्या हुआ, फिर कौन आया. तो लाइक वेरी मच लाइफ एक्सपीरियंस, एंड आपने तो खैर फेस किया है, यू आर देयर. सो थ्रू दिस सेशंस ओनली हम लोग ऐसे ही लाइफ के बारे में लर्निंग आपसे सीखते रहेंगे. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू Anisha. Thank you for so giving much. your time, for being with us. And is there any small message you want to give to our viewers? No, I think the message that we started in the beginning, that everyone should look at the last updated version of themselves. So that is the message I would like to give everyone today, that when they have changed their own version, if they have not done it for some time, then it is the time to reinvent themselves. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द व्यूअर्स. एंड इसी तरह हम सारे सीरीज लेके आएंगे. आज इस सीरीज में हमने री इन्वेंट के बारे में बात करी है, एंड उसमें एक टॉपिक ये हमने बात करा लाइफ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट सीरीज में आपको इसी का दूसरा पार्ट मिलेगा. थैंक यू सो मच टू द व्यूअर्स एंड थैंक यू सर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. Bye. बाय.